Hello, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today, I am going to teach you a very interesting topic, advertisements. Students, you may have observed so many advertisements in newspapers, whether it is local newspaper or English newspaper. What is this? Advertisements, what it is for, we will see in this lecture. So here you all have come across the word advertisements because they appear in newspapers as either classified or display advertisements. All classified ads, we will tell the word ads for advertisement. It is short form of advertisement. Have a definite word limit and appear under set headings such as matrimonials, situations, vacant, sell and purchase, education, property, etc. So here we will study classified and display ads. Classified and display ads. What is the meaning of classified? According to class, it will be divided. Then you can also see ads under different categories such as matrimonials. Matrimonials means related to marriage purpose. Then situations, vacant means for vacancy, job vacancy. Sale and purchase of house or any property, education regarding the admissions and property for sale or purchase. Okay, so here this many type of advertisements are there and I'll explain you all the types of advertisement. Now first you can see on your screen examples of classified advertisements. Students, you have to remember that advertisement is the document that appear in newspaper and it has a definite word limit because each and every word costs money. ओके एक एक वर्ड के पैसे होते हैं, लिमिट होनी चाहिए. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट की एक लिमिट होनी चाहिए, बट दे शुड बी आई कैचिंग. Advertisement should be brief, to the point, as every word cost money. They should be eye catching. इतना तो आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में जब भी एडवर्टीज़मेंट देने के लिए ऑफ़र करते तब हर एक वर्ड है वो कोस्ट करता है, उसके पैसे लगते हैं. सपोज़ 50 वर्ड्स है तो कुछ पैसे लगेंगे, 60 वर्ड्स है तो पर वर्ड कुछ मनी वो लोग चार्ज करते. ओके, सो इट शुड बी ब्रीफ, टू द पॉइंट, एंड इट शुड बी आई कैचिंग ऑल्सो. आई कैचिंग मीन्स जो तुरंत अटेंशन आपका पकड़ ले, दैट इज कॉल्ड आई कैचिंग. लेट्स स्टडी द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. हियर द एडवर्टीजमेंट ऑफ सेल ऑफ शूज इज गिवन. शूज़ बेचने के लिए एडवर्टाइज दी हुई है, एड दी हुई है. ओके, यह मैट्रिमोनियल पर्पस से दी हुई है एड. ब्यूटीफुल एजुकेटेड मैच फॉर 25/173, ब्राह्मीण, MBA इंजीनियर बॉय इंडस्ट्रियलिस्ट विथ हाई इनकम. प्लीज़ राइट विथ फोटोग्राफ. देन राइट बॉक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. अंडरस्टूड? So this is called matrimonial because it is written for marriage purpose. Okay, then here sale and purchase. Okay, यहाँ पर सेल के लिए है ये. Then again एग्जीबिशन, इंफॉर्मेशन दे रहे. नेशनल लेवल स्पेशल हैंड वोवन शॉल्स, ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं शॉल्स का.
इस टाइप की भी एडवर्टीजमेंट होती है. डेट इज ऑल्सो रिटन, then address is written, time is written. Okay, all these things are given, so every detail is given here. Then again the education advertisement, see here, education and for एडमिशन के लिए दी हुई है ये. ओके, सी GD Goenka Public School Rohini, admissions 2013-14, registration open. See, I have taken this pics from your textbook only, so you can use your textbook if the pic is not clear. Okay, if the image is not clear, you can use your textbook because so small letters are there. So here you can see, for seeking an admission in a school, what the parents will look. So first the infrastructure, so all the detail of the infrastructure is given here. For example, centrally air conditioned with 100% power backup, digital e-library with a vast range of books, specialist studios for science, visual and performing arts, custom designed early years computer center, campus wide broadband e-connectivity with Wi-Fi, separate swimming pool for senior and junior students, facilities for indoor and outdoor games, health and fitness center, deluxe air conditioned school buses. And here also one important information is given, school transport now available for Rajouri garden area. Then below that the address of the school is given, GD Goenka Public School. Okay, email ID is also given, contact number is also given, website is also given. Then regarding the admission, the details are given here. Admission forms for preschool means nursery, pre-primary till KG, and classes 3 to 11th may be obtained from the school reception from 15th December to 31st December 2013 on working days up to 2:30 PM. EWS seats as per government norms. Okay, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं and it is a full fledged advertisement. Then also limited word limit is there and the full detail giving advertisement. Okay, so you have to frame such advertisement by your own whenever you are asked to write on any topic. Understood? Now come to the another type of display advertisement. पहले हमने देखी थी क्लासिफाइड, नाउ डिस्प्ले. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट यानी कि कहीं पर डिस्प्ले में लगाई जाती है. यू माइट हैव सीन द बिग होर्डिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ रोड. ओके, कोई इवेंट आने वाला है या कोई गेस्ट आने वाले हैं, ओके, तो उनके वेलकम के लिए डिस्प्लेज लगाए जाते हैं, या तो फिर कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए भी डिस्प्लेज लगाए जाते हैं, अवेयरनेस के लिए भी डिस्प्लेज लगाए जाते हैं. Okay, let's see the display advertisement. Here you can see Bharatiya Sangeet Sadan and Shri Ram Center for Performing Arts present. अब यहाँ पर कुछ इवेंट हो रहा है और वो कौन कर रहा है? भारतीय संगीत सदन एंड श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो हेल्ड कर रहा है ये. और उसका नेम है स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव. ओके, एंड द डेट्स आर गिवन 19, 20, 21 December 2013 at 6:30 PM. So date is also given and the time is also given and the venue. What is the place? Satya Sai International Center, Pragati Vihar, Lodi Road, New Delhi 110003. Now एंट्री बाय इन्विटेशन, यानी कि एंट्री है वो इन्विटेशन पर ही होगी. अवेलेबल एट 52 कम्युनिटी सेंटर ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली एंड 4 सफदार हाशमी मार्ग, न्यू दिल्ली. देन फोन नंबर इज ऑल्सो गिवन. एंड फॉर व्हाट दिस म्यूजिकल इवेंट इज हेल्ड? टू इन होमेज टू द विक्टिम्स ऑफ मुंबई.
जो मुंबई में ये 26/11 को जो हुआ था ना, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक, उनको होमेज देने के लिए, यानी कि इससे जो भी इनकम होगी वो उन लोगों के लिए खर्च की जाएगी, ओके, जो विक्टिम्स है उस इंसिडेंट के. नाउ व्हाट इज़ द प्रोग्राम? सो प्रोग्राम इज़ ऑन 19th December. कौन कौन प्रोग्राम ये है जो प्रेजेंट करेंगे? इकबाल अहमद, वोकल विश्व, मोहन भट्ट, मोहन वीणा, ओके, यानी कि ये सारे हैं गायक कलाकार हैं और म्यूजिशियंस हैं, वो ये सारी चीज़ें करेंगे. 19th को अलग है, 20 को अलग है, 21st को अलग है, ओके. सो आपने देखा होगा कि ईच एंड एवरी डिटेल इज़ गिवन in limited words. Then beside it you can see the advertisement of Surf Excel washing powder. Okay, so you can see the catchy line here. Surf Excel gentle wash removes stains from woolens, not the colors. ये कैची लाइन है कि कलर्स को नहीं धोता है, वुलेंस के स्टेन्स को धोता है वो. ओके, ऑल द डिटेल इज ऑल्सो गिवन हियर एंड पिक्चर इज ऑल्सो गिवन. देन उसके नीचे एक पोस्टर है, अरे डिस्प्ले लगाया हुआ है. BR बोडाडेज वर्क आर ऑन डिस्प्ले एट धूमिला सिटी गैलरी. और फूड फेस्टिवल ताजमहल होटल में होने वाला है, उसका एक डिस्प्ले लगाया हुआ है. ओके, सो दिस आर द डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. Now in exercise you have given Ranbaxy Public School needs a secretary to the principal. You are the administrative officer of the school. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words for publication in the classified situations vacant column of the Hindustan Times. It means कि ये स्कूल जो है रैनबैक्सी पब्लिक स्कूल, उसे प्रिंसिपल के सेक्रेटरी के लिए एक वैकेंसी है और आप उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो स्कूल के, और आपको एक एडवर्टीज़मेंट फ्रेम करनी है सिचुएशंस वैकेंट के नाम पर, यानी कि जॉब अवेलेबिलिटी. ओके, सो आपको 50 वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं. और आप उसमें क्या करोगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस, डिग्रीज़, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्किल्स. ओके, then second one, you are Swabhiman Gupta, a freelance photojournalist. You plan to start coaching classes in photography. Draft a suitable classified display advertisement to the inserted in the hobbies column. ओके, तो आपको कोचिंग क्लास स्टार्ट करने हैं फोटोग्राफी के, और उसके लिए आप एडमिशन के लिए हैं एक डिस्प्ले, क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है, वो फ्रेम करनी है. Then you are Ashok Kumar. You wish to sell your car Honda City, which is a 2009 model and in good condition. Write a suitable advertisement to insert it in the sale and purchase column of the Times of India. आप अशोक कुमार हो और आपको आपकी होंडा सिटी कार है वो बेचनी है, जो 2009 का मॉडल है और जो अच्छी कंडीशन में है. आपको एक सूटेबल एडवर्टीज़मेंट फ्रेम करनी है सेल एंड परचेज कॉलम में टाइम्स ऑफ इंडिया में. ओके, तो एक कार है वो बेचनी है, तो कौन कौन सी चीज़ें आप हाईलाइट करोगे कार की? तो एक तो यहाँ पर 2009 मॉडल दिया हुआ है. सेकेंड थिंग, इट इज़ इन अ गुड कंडीशन. थर्ड थिंग, वेदर इट इज़ पेट्रोल डीजल, कौन सी है वो दिखाओगे ना आप, और कितने किलोमीटर्स उसने किए हैं कवर, वो भी आप दिखाओगे. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करके, कलर भी आप अंदर लिख सकते हो एडवर्टीज़मेंट में. ओके, और ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके यू कैन फ्रेम द एडवर्टीज़मेंट फॉर द सेलिंग ऑफ योर कार. ओके, नेक्स्ट वन इज़ you are Mrs. Khosla. You are fluent in Spanish and German languages. You wish to take up private classes for those interested in learning languages. Means you are going to teach the languages. Which languages? Spanish and German languages to the students who are interested. You have to draft a display advertisement to be inserted in education column of a national daily.
नेशनल डेली हो सकता है, कुछ मैगजीन या कुछ डेली का नाम है. ओके, सो यू हैव टू ड्राफ्ट अ display advertisement for teaching the Spanish and German languages to the interested candidates. Then fifth one, you are Arushi Khanna, Cultural Secretary of MBD School, Ranchi. Your school is presenting a play, Merchant of Venice by Shakespeare. Write an advertisement for it in the local newspaper. आप कल्चरल सेक्रेटरी हो और आपकी स्कूल है मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एक प्ले, उस पर आप अपना प्ले करने वाले हो रोल, और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देनी है. यू मस्ट स्टेट द डेट, टाइम, वेन्यू एंड प्राइस ऑफ टिकट्स इन योर एड. जब भी आप इस तरह की ऐड देते हो तब यू हैव टू, कोई भी है इस टाइप की ऐड, तो यू हैव टू राइट द डेट, टाइम, वेन्यू एंड प्राइस ऑफ द टिकट्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन इज, यू आर अनिल कपूर. You are going to launch a new toothpaste. Write an advertisement for it in 30 words. तो टूथपेस्ट के जो भी फीचर्स होते हैं आप उसे हाईलाइट करेंगे. ओके, नाउ हियर आई हैव गिवन वन एडवर्टीजमेंट. यू हैव ओपनड अ न्यू लोकल स्टेशनरी शॉप. प्रिपेयर अ कमर्शियल advertisement in the form of a pamphlet to be inserted in the newspaper for creating awareness about your shop. आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सारे पैम्पलेट्स आते हैं ऐसे. ओके, तो आपको भी कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट पैम्पलेट के फॉर्म में फ्रेम करनी है, जिससे आपकी शॉप के बारे में जो लोकल एरिया हैं वहाँ के लोगों को पता चले कि ऐसी कोई स्टेशनरी शॉप है. तो व्हाट यू विल राइट, ग्रेट न्यूज़, आई कैचिंग टाइटल लिखना है. योर सर्च फॉर अ गुड स्टेशनरी स्टोर्स एंड्स हियर, यानी कि आपकी अच्छी स्टेशनरी की दुकान की जो सर्च कर रहे हो आप, वो यहाँ पर ख़त्म होती है, बिकॉज यहाँ पर हमारी दुकान है. अब स्टूडेंट्स कैन नाउ गेट स्टेशनरी ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड रिजनेबल रेट जस्ट इन देयर लोकेलिटी. बराबर. अब ये सब आई कैचिंग टाइटल्स हो गए, और फिर दिया है शॉप का नेम, अग्रवाल स्टेशनर्स. देन get attractive discounts on all fancy stationery items. Also get facilities of photocopy, renting books and home delivery. Okay, address is also given. It is not necessary that every time you have to write the phone number. Okay, इतना करके आपको ये बॉक्स बनाना है. एडवर्टीजमेंट है वो बॉक्स में बनानी है. एंड पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम. ओके, देन see the classified advertisement of sell and purchase. You went to sell your house but not using an estate agent. एजेंट्स होते हैं ना, ब्रोकर्स होते हैं, उन्हें यूज़ नहीं, उनकी हेल्प के बिना आप अपना हाउस है वो सेल करना चाहते हो. राइट द एडवर्टीज फॉर द सेम इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर. सी, हाउस ऑन सेल 2 BHK. पहले आपको बताना है कितना है 2 BHK. फुल्ली फर्निश्ड है कि नहीं, फर्नीचर फुल है कि नहीं, मॉडर्न एमिनिटीज़ यानी कि फैसिलिटीज़ मॉडर्न है कि नहीं, वेल मेंटेन. ओके, उसके बाद लिखा है प्लेटिना टावर घाटलोड़िया, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है. एंड यू हैव टू राइट इट इन द बॉक्स. ओके, तो देखा कितने लिमिटेड वर्ड्स हैं. द वर्ड्स आर लिमिटेड words. Then also it is full-fledged, detailed ad. It is detailed ad. Okay, limited words और फिर भी ये ad detailed है. Understood? तो हमने एक क्लासिफाइड देखी, एक ये सेल की देखी है. अब देखते हैं सिचुएशन वैकेंट, जो अभी मैंने बताया था ना कि आप सेक्रेटरी और प्रिंसिपल के, और आपको नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और आपको सेक्रेटरी फॉर द प्रिंसिपल के लिए, जॉब के लिए आपको ऐड देनी है. सो हियर ऑल्सो यू आर द प्रिंसिपल ऑफ न्यू एरा इंग्लिश स्कूल पालनपुर. सो ड्राफ्ट द एडवर्टीज फॉर द पोस्ट ऑफ अ लाइब्रेरियन इन योर स्कूल. यानी कि लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर एडवर्टाइज है वो फ्रेम करनी है. सो फर्स्ट व्हाट यू विल राइट द टाइटल, सिचुएशन वैकेंट, यानी कि जॉब की वैकेंसी है.
और लास्ट में फिर बॉक्स ड्रॉ करना है। ओके, सी द वर्ड वांटेड लाइब्रेरियन फॉर न्यू एरा स्कूल, और वहाँ पर उसकी फिर क्या लिखी है, क्वालिफ़िकेशंस लिखी है। बैचलर इन लाइब्रेरी ये उसकी क्वालिफ़िकेशन है। 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस लुक वाइज स्मार्ट एंड यंग होना चाहिए। सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, जितनी सैलरी है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। सेंड बायोडेटा टू, फिर वेबसाइट दी हुई है। ओके, तो कितना शॉर्ट एंड स्वीट है, फिर भी सारी चीज़ें अंदर इंक्लूड हैं। सो यू हैव टू फ्रेम द advertisement in this manner. After that I have taken some samples from the newspaper which I had. Entrance 2020 Indira Gandhi राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। तो यहाँ पर आप एडमिशन के लिए देख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्या नहीं, यहाँ पर एडमिशन के लिए नहीं है, यहाँ पर जॉब वैकेंसी है। ओके, यहाँ पर एडमिशन नोटिस है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर देयर। देखते हैं, चलो केंद्रीय विद्यालय दाहोद की देखते हैं। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोस्ट पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी। ओके, ये सारे उनकी वैकेंसी हैं, पोस्ट हैं। प्राइमरी टीचर है, टीजीटी है, योगा टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, डॉक्टर, डांस कोच, काउंसलर, स्पोर्ट्स कोच, डीईओ, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, यानी सभी पोस्ट के लिए हैं। लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, इंटरव्यू की डेट्स दी हुई हैं 18 मार्च 2020, टाइम दिया हुआ है 9 PM, प्लेस है केंद्रीय विद्यालय दाहोद और उसका एड्रेस दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी दी है। इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट। ऐसे भी कर सकते हो, अगर वर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट करना पड़ेगा, इससे बेटर है कि आप वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दो। नाउ important details are also given. Important information for the candidate will be purely contact basis for all vacancies, contract based हैं। Okay, candidates will come with original document, certificates, self-attested photocopies of all relevant documents with 2 passport size photographs. No TADA will be given by the Vidyalaya. Candidate must be proficient in English, Hindi and computer। और फिर बाद में वेबसाइट का नेम दिया हुआ है, और जिसने दी है ये ऐड उसका नेम दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी द मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मीन्स रिलेटेड टू मैरिज पर्पस। तो यहाँ पर वांटेड ब्राइड्स, ओके, ब्राइड्स चाहिए, तो कास्ट दी हुई है, और देखो कितने स्मॉल बॉक्स में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ओके, सूटेबल मैच फॉर KKB संदिल्य MBA बॉय 32 5 इंच 5 फीट 10 इंच इंडियन MNC है। ओके, तो कास्ट भी दी हुई है, कैसा चाहिए, उस मैच कैसा चाहिए, उसकी सारी डिटेल्स दी हुई है। फॉर एग्जांपल ब्राइड्स चाहिए तो ब्राइड ग्रूम जो है उसकी हाइट, उसका लुक, उसकी एजुकेशन। ओके, और अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसी ही ब्राइड होनी चाहिए तो वो भी दे सकते हैं मैट्रिमोनियल में। ओके, स्टडी ऑल दिस मैट्रिमोनियल एड, देन यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस। सपोज यहाँ पर बाय नेशनलिटी NRI ग्रीन कार्ड। ओके, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ग्रीन कार्ड वाली ही चाहिए, देन सिंधी है, गुजराती है, ओके, जनरल है, कास्ट नो बार भी होती है। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर वांटेड ग्रूम्स में भी हैं कि बॉयज़ चाहिए तो अग्रवाल बीज़ा। ओके, इस टाइप के अलग अलग टाइप के आपकी जो भी नीड्स हैं उस हिसाब से वर्ड्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। सो अंडरस्टूड व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट? इंटरेस्टिंग ना? आपको पता चला होगा कि क्या होता है एडवर्टीजमेंट। तो क्लासिफाइड हमने देखा, वी हैव सीन क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड्स में मैट्रिमोनियल आएगी, सेल एंड परचेस आएगी, एजुकेशन आएगी,
डिस्प्ले में इस टाइप के पोस्टर्स आएंगे या जो क्रिएट करते हैं अवेयरनेस, ओके, ये सारी चीज़ें आएंगी. एंड वेन एवर यू राइट एडवर्टीजमेंट यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको बतानी होगी. इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन यू विल नॉट बी गिवन मार्क्स. अंडरस्टूड. अपने आप को उस पोस्ट पर रख कर देखो कि आपको क्या चाहिए. ऑटोमेटिक यू विल फ्रेम द एडवर्टीजमेंट विथ रिलेटेड डिटेल्स. अंडरस्टूड. सो ट्राई टू राइट एनी ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑफ एक्सरसाइज 3. अपने आप से कोई भी एक एडवर्टीजमेंट लिख कर देखो एंड यू कैन शो मी इन ऑनलाइन लेक्चर कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. ओके, किस चीज़ के लिए लिख रहे हो. बी क्लियर इन दैट. Be clear in writing the date, time, venue for such advertisements. Understood? So it's very interesting. Try to frame an advertisement by yourself. I hope you understood, and you will do the given homework, and we will meet with another interesting point in next lecture. Till then, bye.